Hi, this is Coach Darshan Vyas, and as a part of our transformation series, we try to bring in a lot of confidence and clarity. And in season 2, we're focusing on the execution skills. तो इसी सीरीज के तहत आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं वन ऑफ द यंग इन्फ्लुएंसर्स. He is a gaming specialist. So let me get my guest first. Hello. Hello, sir. How are you? I'm doing good. What about you, Doing sir? good? Yeah. Great. तो सबसे पहले being a Gujarati and I have got another Gujarati with me. So જય જય ગરવી ગુજરાત. જય આપને જય ગરવી ગુજરાત. આપને આજના ગુજરાત દિવસની શુભકામનાઓ અને આપણા તમામ લાઈવ વ્યુઅર્સ જે પણ આપણા ગુજરાતી જોઈ રહ્યા છે એ સૌને મારા તરફથી જય જય ગરવી ગુજરાત, અભિનંદન, જય હિન્દ. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड અને आई थिंक हम लोग शुरुआत में 2-5 मिनट गुजराती में बात करेंगे एंड देन वी गेट बैक टू हिंदी. सो जयेश, आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन अभी देना बाकी है बिकॉज मैं टिपिकली आपकी एंट्री से पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, बट आई थॉट के बीइंग अ गेमर आई वांटेड यू टू बी हियर एंड इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑडियंस. सो आई थिंक इफ यू अलाउ वी कैन गेट स्टार्टेड. Sure, sure. ओके देखिए, आपका मैं बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूं बिकॉज आप बहुत यंग है एंड आपने अपना खुद का नाम बनाया है. So our today's guest is somebody who is a gamer. He's a engineer by education and वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छी बना चुके हैं. उनका सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का फॉलोइंग है और इंडिया के जो नेशनल लेवल के जो गेमर्स है, जो इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्हें फॉलो करते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आईसीसी के साथ कोलैब किया है. इन्होंने एसर, एसूस या बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स इनके साथ उन्होंने कोलैब किया है. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर टुडेस गेस्ट जयेश प्रजापति. Thank you, sir. जयेश जी, Thank you आपका for स्वागत है. introduction. आपका Thank you. स्वागत है. यस यस. જયેશ, being a ગુજરાતી, मैं थोड़ा आपसे गुजराती में बात करना चाहूंगा कि તમને ક્યારે વિચાર આવ્યો કે હું ગેમિંગમાં મારી કેરિયર બનાવીશ? Well, આ વિચાર તો કહેવાય ને કે રમતા રમતા જ કે ગેમિંગમાં છે ને પૂરો પૂરો દિવસ નીકળી જતો પહેલા કે આખો ઓકે. દિવસ બેઠા હોઈએ ને ગેમ રમતા હોઈએ ને એમાં પૂરો પૂરો દિવસ નીકળી જતો. પછી એવું લાગ્યું કે યાર આ વસ્તુમાં હવે બાકી લોકો જયારે કરિયર બનાવવા લાગ્યા, જયારે ઇન્ડિયામાં છે ને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગનું કહેવાય ને કે લોકો બહુ બધા સ્ટ્રીમર્સ એવા આવી ગયા કે જે લોકો લાઈવ સ્ટ્રીમ કરતા હતા ગેમિંગની, તો ત્યારે મને ઓકે. ત્યાં એક નાનકડી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાઈ અને એ ટાઈમે કહેવાય ને કે હું જે સોફ્ટવેર હોય છે એન્જિનિયરિંગના, મતલબ જે ઓટોકેડ આ બધા સોફ્ટવેર છે એ માટે મેં પપ્પાને કીધું હતું કે પપ્પા મને એક પીસી બનાવડાવી આપો. તો પછી મેં કીધું કે હવે એ પીસી થી જ આપણે ગેમિંગનું શરૂઆત કરીએ. વાવ. કરેક્ટ. અને આઈ બિલીવ કે આપણે જે રીતે વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે યુ કમ્પ્લીટલી સેટઅપ એન એન્ટાયર સ્ટુડિયો. યા તમે ગેમિંગ માટે આખું એક સ્ટુડિયો સેટઅપ કર્યું છે, તો એનું થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન આપો. મારા ગેમિંગ જે સ્ટુડિયો છે એમાં મારી પાસે અત્યારે 2 પીસી છે. એમાં મારી પાસે સ્ટેરિંગ વ્હીલનું પૂરું સેટઅપ છે. મારી પાસે વીઆર ક્રિકેટ ને એના માટેનું આખું વીઆર નું સેટઅપ છે. એ સાથે સાથે મારી જોડે PS5 છે. મતલબ ઓલમોસ્ટ કહી શકાય કે મારી પાસે બધા જ સાધનો છે. મારી પાસે સ્ટુડિયો લેવલનો માઇક છે અને કહેવાય ને કે સ્ટુડિયો લેવલનો કેમેરો બી છે મારી જોડે. ઓકે, મતલબ કહેવાય કે વન્ડરફુલ. ગેમિંગ માટે જેટલી પણ सामग्री જોઈએ એ બધી મારી પાસે છે. ग्रेट. तो आई थिंक जयेश हमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने फुल प्रूफ प्लान बना लिया कि वो गेमिंग पे ही अपनी करियर बनाने वाले हैं. हम तो जरा चेक कर रहे थे कि ये कितने सीरियस है, पर भाई साहब ने मुझे जिस तरह से बताया था ऑफलाइन में कि करीब 4-5 लाख का पूरा स्टूडियो सेटअप बना के रखा या है और उन्होंने टॉप लेवल के जो माइक्स है या सारे इक्विपमेंट है वो पूरा इन्वेस्टमेंट करके रखा है एंड ही इज कंप्लीटली इनटू दिस. सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड. या ओके ग्रेट. देखिए, जब मैंने आपके बारे में बात की ऑनलाइन मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं. बहुत यंगस्टर्स ने, जेनजी ने स्पेशली मुझे क्वेश्चंस भेजे और वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं. उसमें से कुछ मैं आपको अभी शुरू करने वाला हूँ बिकॉज बहुत कड़क सवाल आए मेरे पास. तो अगर आप रेडी है तो हम लोग शुरू करते हैं. जी पक्का. ग्रेट. ओके. वेल जयेश, देखिए, मैं आपसे स्ट्रेट बात करूंगा कि आपने ये गेमिंग का करियर चूज किया तो आपके पेरेंट्स, आपके जो सीनियर्स थे या आपके जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या ये सही में करियर बन सकता है या ये टाइम पास उन्होंने बहुत क्वेश्चन किए मेरे को क्योंकि गेमिंग को उस टाइम पे कोई ऐसा करियर देखता नहीं था. यूजुअली ऐसा होता है कि जब कोई भी फील्ड होता है उसमें कोई कोई और आइडल होता है, उसको देख के लोग फॉलो करते हैं. लेकिन उस टाइम पे गेमिंग में उतने सारे आइडल्स थे नहीं. अब देखा जाए तो अब बहुत सारे आइडल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि पापा मेरे को इसके जैसा बनना है या मम्मी मेरे को इसकी तरह बनना है. लेकिन उस टाइम पे कोई आइडल्स उतने थे नहीं इंडिया में, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा टफ बना. लेकिन पॉसिबल हुआ कि हाँ चलो धीरे धीरे जब ग्रोथ देखा उन्होंने तो फिर अलाउ कर दिया. है? ओके ग्रेट. तो
दूसरा एक सवाल है कि मान लीजिए जब आपने शुरुआत की तो क्या वो आसान थी आपके लिए? नहीं, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। शुरुआत तो उल्टा बहुत ज्यादा टफ थी, क्योंकि उस टाइम पे गेमिंग स्टार्ट हुआ था, गेमिंग का एक बज इंडिया के अंदर, और शुरुआत में ही अब एक पिक कर लेना वो थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी फेमस हो चुके थे और उनसे कम्पीट करना था। वो लोग कहते हैं कि दिन में 6-6 7-7 घंटे डेली लाइव स्ट्रीम करते थे, और उस टाइम पे उनसे कम्पीट करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके, फाइन। आपका दूसरा फोन आपके आसपास कहीं पड़ा है? बिकॉज थोड़ा बज हो रहा है, तो अगर आपका फोन आसपास में है तो थोड़ा, या बिकॉज आई जस्ट नहीं, मूव माई। एक्चुअली वो साइलेंट किया हुआ है मैंने। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। या ओके, फाइन। तो देखिए, जब हम रियलिटी चेक की बात करें, बिकॉज पेरेंट्स देखने वाले हैं ये, बाद में भी इसके हिसाब से हम लोग उनको गाइड करने वाले हैं। लेट अस बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। जिस तरह से हम लोग एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आप एक अच्छा सा डिग्री ले लो, उसके बाद अगर मास्टर्स कर सकते तो अच्छी बात है, अपना करियर बना लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ। तो ये गेमर बनने का आपको कहाँ से भूत सवार हुआ? गेमर बनने का भूत तो स्टार्टिंग में तो नहीं था। इवन मैं जब कहता था कि मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह सब स्टार्ट कर लिया, मेरे यूट्यूब पे 1 लाख के ऊपर भी सब्सक्राइबर हो गए, तब भी दिमाग में ये नहीं था कि ये फील्ड को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बट जो वो क्लियरिटी तब आई जब मेरे को कहता था कि एक सर्टन अमाउंट जब मेरे अकाउंट में आने लगी, तो मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ कमाल ही है, मतलब इस फील्ड में हो सकता है ग्रोथ। फिर धीरे धीरे गेमिंग इंडस्ट्री को भी मैंने ग्रो होते हुए देखा, क्योंकि शुरुआत में तो गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन ही था कि लाइव स्ट्रीम करो बस। फिर उसके बाद जब ई स्पोर्ट्स का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे जब पता चला कि नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत कुछ कर सकती है आगे जाके, गेमिंग इंडस्ट्री ओलंपिक्स के साथ जुड़ने वाली है, मतलब हर छोटी छोटी चीजों में जब गेमिंग इंडस्ट्री जुड़ने लगी तो लगा कि नहीं, हाँ, इस चीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम तक ही सीमित है, यूट्यूब में फुल वीडियोस है, फिर शॉर्ट फॉर्म भी धीरे धीरे आने लगा, तो फिर लगा कि नहीं, हाँ, कि हाँ, अब तब जाके क्लैरिटी आया कि हाँ, इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो पैसों की बात हो रही है तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ। पहला 1 लाख कब बनाया था आपने? जयेश मैंने तब बनाया प्रजापति था द गेमर ने अपना पहला 1 लाख कब बनाया था? ड्यूरिंग कोविड आई कैन से। तब फेसबुक ने मेटा पार्टनर्स करके गेमिंग क्रिएटर्स को साइन किए थे, बहुत सारे क्रिएटर्स को ओके, साइन किए थे, एंड ड्यूरिंग ओके, दैट टाइम उन्होंने मेरे को भी साइन किया था। स्टार्टिंग में तो उन्होंने स्मॉल अमाउंट दिया था, बट जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए, वो मंथली 20 वीडियोस डालने को हमको कहते थे फेसबुक पे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी कि मेरे वीडियोस में बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग व्यूज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया, और करीबन वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास 1.5 से 2 साल और रन चला। ओके। सो या आपको 1 लाख कमाने में कितना समय लगा? या हम लोग वीडियोस के रूप में बात करते हैं, आपको 15 वीडियोस बनाने पड़े, 50 बनाने पड़े, 100 बनाने पड़े, या दूसरे तरीके से बात करूं कि आपको 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, या 6 महीने लगा? जी, जो स्टार्टिंग का पहला जो 1 लाख रुपए था उसको बनाने में मेरे को आराम से मेरे को 5 से 6 महीने लगे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ओके, फेज तो बहुत मेरे को ग्राइंड करना पड़ा। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि रातों रात अकाउंट में आ जाए पैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चैनल मोनेटाइज होना ही बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो चैनल मोनेटाइज करते करते, क्योंकि 4,000 वॉच आवर्स करने थे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने यूट्यूब पे लाइव जब करते तो लोग सुपर चैट्स वगैरह करते, तो लोगों ने बहुत सारी सुपर चैट्स की। तो ऐसे स्मॉल अमाउंट करते 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 फिर कहते कि 6 से 7, 5-6 महीने आराम से लगे होंगे, फिर जाके मेरे पास एक कहता था कि 1 लाख का अमाउंट प्रॉपर मेरे पास आया होगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड पेरेंट्स कि ये जयेश भाई में क्लियर कट बता रहे हैं कि उन्होंने 6 महीना हसल किया था, पूरी मेहनत की थी, उसके बाद उनको 1 लाख रुपए मिला था। तो यहाँ पे कोई हम लोग हवेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लियर बात कर रहे हैं, और पूरा ग्रेडिंग हो रहा है जयेश भाई का कि उन्होंने किस तरह से गेमिंग में अपना करियर बनाया और पहला 1 लाख कैसे बनाया। आज तो हालांकि वो लाखों कमा रहे हैं, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो जयेश भाई देखिए, आपकी जो लाइफ अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो क्या वो रियल है या एडिटेड है? मेरी जो सोशल मीडिया लाइफ है वो सबकी सब रियल है। मतलब मैंने आज तक सोशल मीडिया पे कोई भी हवाबाजी नहीं की। हाँ, मैंने ऐसा कोशिश किया है कि मेरे पास जब थोड़े अच्छे खासे अमाउंट आए तो मैंने उसको इन्वेस्ट किया है। जैसे कि जब हमारे यहाँ पे देखा जाए तो आईपीएल मैच हुई थी ड्यूरिंग 2023, गुजरात वर्सेस सीएसके। तो उस टाइम पे मैंने कहते हैं कि मैंने 20 या 22 हजार रुपए की कुछ टिकट ली थी, तो वो मैंने एक परचेस करके वो मैंने किया। तो जो भी था वो रियल था, लोगों ने देखा, वो चीज वायरल भी हुई। उसके बाद शुभमन गिल ने भी कमेंट किया,
वो पर्टिकुलर रील पे, तो वो न्यूज में भी बहुत जगह पे आया। तो जो भी सोशल मीडिया पे चीजें सब रियल ही होती है। मैंने तो आज तक कभी कोई कोई चीजें फ्लेक्स की नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसे क्या बोलते हैं बड़ा मकान बना दिया। हालांकि मैंने जहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा मैंने कभी कोई फ्लेक्स नहीं किया। हाँ, मेरा एक गेमिंग सेटअप है, वो लोगों को मैंने दिखाया कि हाँ मैंने देखो गेमिंग से इतना पैसा कमाया था, तो मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गेमिंग सेटअप पे किया है क्योंकि मेरे को इसी चीज पे काम करना है। तो फ्यूचर में मेरे पास क्या क्या सेटअप है, लोगों को कुछ परचेस करना है गेमिंग के रिगार्डिंग, तो वो लोग क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बस मैंने अपने सेटअप का और कहते हैं ना कि रूम टूर मैंने दिखाया हुआ है। उसके अलावा मैंने कभी कोई चीजें फ्लेक्स नहीं किया। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आई थिंक दिस गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू पेरेंट्स कि देखिए ये जो अप्रोच होता है आपका और आपके अप्रोच से जेंजी जो सीखने वाली young जो अपनी करियर बनाना चाहते हैं, टू बी वेरी क्लियर कि किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं एंड बीइंग ग्राउंडेड आप अपनी करियर को लॉन्ग टर्म किस तरह से पाथवे बना सकते हैं। तो आई थिंक जयेश यू आर अ फैंटास्टिक एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज जेन दे कैन गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज द स्टेइंग ग्राउंडेड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ओके, वेल आई थिंक आपने अपनी बिगिनिंग के जो स्ट्रगल्स थे उसके बारे में कुछ बताया हमें। तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जहां पे शायद आपको लगा होगा कि यार शायद मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी हुआ था? जी, ऐसा भी बिल्कुल फेज हर एक क्रिएटर की लाइफ में यूजुअली आता ही है क्योंकि एक कहता है ना कि स्टार्टिंग बस मिलने के बाद उसको थोड़ा बहुत जब ग्रोथ देख लेता है और फिर एक थोड़ा सा तो डाउनफॉल हर एक की लाइफ में आता है। तो ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। तो ये तब हुई थी जब मेरे पास इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो खत्म हुआ तो मेरे को ऐसा फील होने लगा कि अब ये यहाँ से आगे क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या चीज होगी। क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि आप एक फील्ड से जब आगे बढ़ते हो और फिर उसमें अचानक से एक रुकावट आ जाती है तो फिर आप सोचते हो कि अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैसे आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद ही कहते हैं ना कि एक 3-4 महीने का गैप गैप आया, उसके बाद मेरे पास फेसबुक का कॉन्ट्रैक्ट आया, तो तब जाके मेरे पास थोड़ी क्लैरिटी और क्लियर हुई। लेकिन जो ये फेज था ये 2-3 महीने तक का ही था, लेकिन थोड़ा हार्ड था। ओके, तो उस वक्त आपने अपने रियलिटी को कैसे टेस्ट किया? डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेट ऑप्शंस? श्योर, मैंने उस टाइम पे थोड़ा अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मुझे ये पता था कि फेसबुक ऐसे क्रिएटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते हैं। तो मेरे को ये चीज पता थी, मेरे माइंड में ये चीज क्लियर थी, तो इसीलिए मैं फेसबुक पे भी ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि जिसकी वजह से उनके ध्यान में मैं आऊं और वो लोग मेरे को इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। और मैंने थोड़ा बहुत कहते हैं कि कॉन्टेक्ट भी बनाने की कोशिश की है कि जिसकी वजह से मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली मिल पाए। तो यही सारी चीज थी कि मैंने अल्टरनेटिव्स पे भी फोकस किया कि हाँ मैं इस चीज में मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरे को क्या करना चाहिए उसके लिए। उसके साथ साथ बोले तो मैंने यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी डाले, लाइव स्ट्रीम भी बहुत कोशिश की है और एक दो और भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस थी, तो उस पे भी मैंने स्ट्रीमिंग करने का कोशिश किया कि चलो ट्राई करते हैं कि क्या पता इस फील्ड में भी मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके, यू मेंशन इन योर बायो यू आर अ ट्रेन्ड इंजीनियर, तो या कभी आपको लगा कि मैं अपनी फील्ड में जाके काम करूं? ऐसे अभी तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि जब शुरुआत का फेज था तब ऐसा मन करता था। जब गेमिंग में थे ना तो ऐसा लगता था कि गेमिंग एक साइड अपना एक फेज रहेगा हमेशा के लिए, अभी ग्रोथ कर लेता है, एक बार अच्छी सी चैनल रन करने लगेगी, उसके बाद जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं पे अच्छा जॉब करना होगा जॉब कर लेंगे या फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड को मेन ही रखना है और गेमिंग उसको ओके, साइड रखना है, ऐसा। तो आपके कॉलेज के जो दोस्त हैं या आपके जो कॉलिग्स थे या आपके जो पीयर्स थे, कभी उन्होंने आपको कुछ बोला कि यार ये सब नहीं चलेगा, छोड़ दे यार, कुछ और करते हैं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो हर हर फ्रेंड बोल चुका है मेरे को ऑलरेडी, क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज होता है तो उनको ये लगता है कि ये कैसा होगा, तू ये सब फील्ड मत कर। लोगों को एक कहता है ना कि जब कोई एक नई फील्ड में कोई बंदा घुसता है तो उन्होंने जब तक सक्सेस नहीं देखी बाकी लोगों की तो वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये फील्ड में ये चीज नहीं हो पाएगी, ये कोई भी ऐसा टिक नहीं पाएगा, ये फील्ड थोड़े टाइम तक चलेगी फिर ये चीज खत्म हो जाएगी। तो हर किसी को यही चीज लगती थी। लेकिन ठीक है, क्योंकि उनका भी एक अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा नहीं है तो उन्होंने वो चीज बोली है। Okay, so what you're trying to say, Jayesh, you set an example in your community also, in your engineering community, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, you set an example कि एज ए गेमर आप अपनी करियर बना सकते हैं एंड आई थिंक टुडे यू हैव fairly सक्सेसफुल, तो लोग आपको मानते हैं। जी हाँ, आज लोग मानते हैं कि हाँ गेमिंग फील्ड में आगे बढ़ सकता है और बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे से ये चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे बेटे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ऐसा भी मेरे साथ केस हुआ था कि एक कहता ना कि मेरे ही क्या बोलते हैं
मेरी कम्युनिटी में एक लड़का था, तो उसको पता चला कि मैं प्रजापति हूँ, तो कहीं से उसको वो मेरा एड्रेस लेके आया और अपने मम्मी और दादी को लेके सीधा मेरे घर पे आ गया कन्विंस करने के लिए कि ओके। आप कन्विंस करो कि मेरे को गेमिंग फील्ड में आगे बढ़ना है। बट जबकि मैं ना उसको जानता था, ना उसकी मम्मी को, ना उसकी दादी को, किसी को नहीं जानता था। लेकिन वो डायरेक्ट घर पे आ गया और बोला कि आप प्लीज कन्विंस करो इनको कि मैं गेमिंग फील्ड में आगे बढ़ूं, ऐसा। इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक यू आर सेटिंग एन एग्जांपल टू यंगस्टर्स कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। और एक अच्छा एग्जांपल है कि जहां पे लोग आपसे मिलने आ जाते हैं और आपसे सलाह मशवरा भी करते हैं। सो आई थिंक गुड। सो क्या लगता है आपको कि गेमिंग से इजीली पैसे बन सकते हैं? नहीं, गेमिंग से इजीली पैसे नहीं बनते। गेमिंग एक कहते हैं ना कि हार्डवर्क मांगती है, आपसे टाइम मांगती है, आपका एक्सपीरियंस मांगती है। क्योंकि गेमिंग फील्ड ऐसा है कि इंटरेस्ट हर किसी को होता है, लेकिन आपको ऑडियंस के पास पहुंचना है। अब ये देखा जाए तो ऑडियंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एक टाइम था जब लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा लोग देखते थे, आज का टाइम है तो जब लोग शॉर्ट्स और रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं। आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा, ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है चीजों पे। हर एक चीज का स्टडी करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और फिर जाके एक टाइम पे आपको एक ग्रोथ मिलने लगेगी, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। और लोग आपको कहते हैं ना कि बहुत बार ब्लाइंड फॉलो भी करते हैं लोग, आपको वो भी करना स्टार्ट करेंगे। ओके। बट जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भी देखो यार, सोशल मीडिया है, मैं 15-20 रील डाल देता हूँ या मैं ये कुछ कर लेता हूँ 2 4 6 महीने, मेरी 2 रील भी वायरल होगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या ये सही है? वैसे तो देखा जाए तो शुरुआत के फेज में तो थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रखना चाहिए कि एक रील वायरल हो जाए। बट वो एक रील है ना, एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक आपको खुश कर सकता है। कि क्योंकि 1 2 हफ्ते तक जब तक आपको रीच मिलेगी आप खुश रहोगे। फिर जब आपकी रीच वही रील पे कम आएगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन वही एक सोच उस इंसान को मोटिवेट करेगी कि हाँ, अब नेक्स्ट कुछ और करना है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा वायरल हो। ओके। तो विद दिस चेंजिंग डायनेमिक्स, आई थिंक 2025 में गवर्नमेंट लेवल पे काफी इंटरवेंशन हुआ। लार्जर स्केल पे गेमिंग इंडस्ट्री पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए थे। तो आज 2026 में उसका क्या इम्पैक्ट है? 2026 में इस चीज का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही थी। एंड सडनली कहते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री की जो मेन मेन गेम थी पबजी, वो जब बैन हो गई तो लोगों के पास एक ऑप्शन था उस टाइम पे। क्योंकि ज्यादातर जो गेमिंग इंडस्ट्री में लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो मोबाइल गेमिंग के, 10% ही ओके। लोग हैं जो पीसी और PS5 एक्सबॉक्स उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो 90% जो ऑडियंस है उनकी मेन मेजोरिटी जो गेम है वो पबजी ही खेलते थे उस टाइम पे। तो अगर वही गेम चली जाएगी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लोग अभी क्या सोचेंगे कि अभी स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ेगा। पेरेंट्स भी एक बार सोचेंगे कि ऐसे तो गेम कभी भी बैन हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों को इसमें कैसे भेजें। तो ये एक थोड़ा ओके। बहुत कहते हैं कि प्रश्न था। बट हाँ, अभी ये थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो चुका है। गेम ने भी अपने थ्रू उस चीज को इम्प्रूव किया है। और देखा जाए तो अभी पीसी गेम्स भी बहुत ज्यादा आ चुकी है। उसके बाद वैलोरेंट भी आ चुकी है मार्केट के अंदर। और भी कई सारी पीसी गेम्स है जो इंडिया के लिए कहते हैं कि एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, वहां पे कहते हैं कि एक बड़ा रोल निभा सकती है आने वाले टाइम पे। ओके। So do you think this gaming will be officially recognized into larger level of games like physical games where we talk about Commonwealth Games and Olympics? तो क्या उसे वहां पे वो recognition मिलेगा? शुरुआत में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसी बात है कि स्पोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट अभी रिसेंटली हो रहा है। तो पेरेंट्स अभी सिर्फ उस चीज को नोटिस करेंगे, फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग इस चीज में बिलीव करने लगेंगे। क्योंकि ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसे ही ई स्पोर्ट्स है। बस इसमें यह है कि यहाँ पे हम लोग डिवाइस पे वर्क करता है, यहाँ पे हमारा जो पूरा फोकस लगता है वो यहाँ पे डिवाइस पे ही लगता है। जबकि स्पोर्ट्स जो होता है वो कहते हैं कि आउटर एरिया में यूजुअली लोग उस पर फोकस करता है। बट मेहनत यहाँ पे भी लगता है, माइंड यहाँ पे भी घिसता है, स्ट्रेटेजीज यहाँ पे भी लगती है। तो हम्म। आने वाले टाइम पे लोग इसको 100% रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि ओलंपिक्स से लेके हर जगह पे गेमिंग जो है वो लोग इसको ऑप्शन देखेंगे। ओके। सो अगर कोई शुरू करता है करियर, मान लीजिए कोई 22 साल का युवा है एंड ही वांट्स टू मेक अ करियर इनटू गेमिंग, व्हाट वुड बी फर्स्ट स्टेप, या अगले 30 दिन का उसका क्या प्रोग्राम होना चाहिए? अगर मेरा ये मानना है कि अगर उसको ई स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना है या फिर उसको कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर उसके पास ये चीज क्लियर है कि उसको ई स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना है,
तो उसको स्टार्टिंग फेज में कहते हैं कि अलग अलग टीयर के कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, जैसे कि ओके अगर मान लेते हैं कि बीजीएमआई गेम में उसको आगे बढ़ना है, तो स्टार्टिंग में वो टीयर 3 लेवल के कस्टम्स होते हैं, वो उसमें प्रैक्टिस करेगा, उसमें खेलेगा, फिर ग्राइंड करेगा। जब उसको एक कहते हैं ना कि लेवल बढ़ेगा जब उसका, तो उसके बाद वो टीयर 2 कस्टम्स खेलेगा, उसके बाद वो टीयर 1 कस्टम्स में जाएगा, और उसके बाद वो बड़ी बड़ी जो टूर्नामेंट्स होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहां से उसकी शुरुआत होगी एज अ ई स्पोर्ट्स जर्नी में, चाहे वो बीजीएमआई हो या फिर वैलोरेंट हो। तो उसको कहते हैं कि एक ग्राउंड लेवल से उसको एक ग्राइंड करना पड़ेगा। जबकि बात करें कंटेंट क्रिएशन की, अगर उसको कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग करनी है तो वो कहते हैं कि अभी रील्स है, शॉर्ट्स है, उस पर फोकस कर सकता है, क्योंकि करंटली यही एक दो प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। ओके एंड व्हाट कुड बी हिज 30 डेज एग्जीक्यूशन प्लान? क्या वो 2 से 3 स्टेप ले सकता है जिससे वो अपना फुट होल्डिंग बना सकता है? क्या करना चाहिए उनको? एग्जैक्टली ये करना चाहिए। वेल 30 डेज मेरा ये मानना है कि शेड्यूल ये इस तरह से कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो 10 डेज है, तो उस पे एक स्टार्टिंग से शुरुआत करे कि दो दो रील डाल दी। मतलब ओके टाइमिंग नोटिस करे इंसान कि टाइमिंग इस टाइम पे डाला मैंने रील, और मेरा ये रील चल रहा है, इस रील पे मेरे को 1000 व्यूज आए, इस रील पे मेरे को 200 व्यूज आए, इस पे 100 आए, इस पे 50 आए। तो वो अगर 10-15 दिन में उस चीज को एनालाइज करेगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बाकी के 15 दिन का उसको क्लियर इमेज मिल जाएगा कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए और किस टाइम ओके पे इस चीज को अपलोड करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग के 15 दिन में अगर उसको समझ आएगा कि मैंने ये टाइम पे ये इस टाइप का वीडियो डाला, इसमें स्टार्टिंग में ये हुक यूज किया है, मैंने कुछ ऐसा डायलॉग बोला है कि जो लोगों को उस रील में या उस वीडियो में रोक के रखा है, तो ओके अगर वो चीज समझेगा और शायद रिपीट भी करेगा, तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बाकी के 15 दिन में भी आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 10-15 जो दिन होते हैं उसमें दो दो रील डाल के ट्राई कर सकते हैं, या फिर तीन तीन रील से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसको एक कस्टमाइज कर सकते हैं कि शेड्यूल करना, जैसे कि बाकी के जो दिन है उसमें एडवांस में अगर कंटेंट बनाया हो तो उसको शेड्यूल करके भी रख सकते हैं। ओके फाइन। यू वुड से कि उसे शुरू करना चाहिए, या ज्यादा परफेक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए, गेट स्टार्टेड, शुरू कर देना जरूरी है। या ओके तो जब आपने शुरू किया तो उस वक्त आपको लगा कि आपने शुरुआत के फेज में फर्स्ट 6 मंथ्स में या पहले 1 साल में सबसे बड़ी गलती क्या की? वेल सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मेरे पास जब भी पैसा है ना, एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो मैंने एक बजट के अंदर चीजें फाइंड करना स्टार्ट की कि बजट माइक कौन सा होगा, बजट कैमरा कौन सा होगा। तो उस ओके चक्कर में मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हो गए कि जो ऑलमोस्ट वेस्ट चले गए। अभी मेरे पास 2-3 ऐसे वेबकैम है जो बिल्कुल काम के नहीं है, क्योंकि उस ओके टाइम के बाद आपको एक टाइम के बाद जब आपका कंटेंट अच्छा होता है लेकिन आपकी क्वालिटी नहीं होती, फिर आप सोचते हो कि मैं और क्वालिटी बढ़ाता हूँ, तो फिर ओके आपके पास जो पर्टिकुलरली चीज पड़ी है आप उसको भी छोड़ के और आगे बढ़ोगे। तो मेरे बहुत करेक्ट सारे एक्सपेंसिव मेरे डिवाइस के पीछे चले गए कि मैंने बजट में हर चीज फाइंड करने की कोशिश की। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक थोड़ी बहुत भी ग्रोथ दिखती है एक टाइम के बाद, आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप देखो एक बार स्टार्टिंग में इस चीज में कंटेंट क्रिएशन में एक बार हाथ पैर मार के देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इमेज क्लियर होता है कि हाँ आप इस चीज में 100% आगे बढ़ सकते हो और आपको ये चीज करनी ही है, तो उसके बाद आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, और ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि आपको बार बार खर्चा ना करना पड़े। ओके सो यू वुड से कि अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज होती है थोड़ा काम करने के बाद, तो आपको अपने काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इज व्हाट यू या आर ट्राइंग टू से? या ओके और वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। या ओके फेयर इनफ। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि आपने शुरुआत कर दी, फर्स्ट 30 डेज का आपने एग्जीक्यूशन प्लान बता दिया, व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हिच यू हैव डन एंड व्हाट यू फेल्ट के मुझे अपने काम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। पर इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का एक रोल होता है। तो आप क्या कहते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी ऐसा है कि वो बार बार गिर जाती है ज्यादातर लोगों के अंदर, क्योंकि जब आप कोशिश करते रहते हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, गेमिंग फील्ड के अंदर स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे हर ओके दूसरा तीसरा कहते हैं कि क्रिएटर आके ट्राई करता है कि वो ज्यादा बेस्ट है। तो इस टाइम पे तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ यूनिकनेस लानी पड़ती है, तभी जाके कंसिस्टेंट रह पाते हैं। मतलब इसको मेंटेन करने के लिए यही है कि आप अलग अलग आइडियाज पे फोकस करो। जब तक आप अलग ओके अलग आइडियाज पे फोकस नहीं करोगे, आप एक ही जगह पे अटके रहोगे, तो मुझे लगता है कि वो आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरी बात करूं ना, तो मैंने बीजीएमआई गेम पे बहुत कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश की, लेकिन वो बार ओके बार ब्रेक हो जाती थी। क्योंकि आप एक पर्टिकुलरली गेम पे बहुत ज्यादा टिक नहीं सकते हो। अगर आपको ई स्पोर्ट्स में नहीं घुसना है, तो अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको वो मेंटेन करनी है, तो आपको अलग अलग गेम्स पे फोकस करना पड़ेगा। तब जाके मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। ओके
फॉर आवर ऑडियंस जो नए हैं, लेट्स से फॉर पीपल लाइक मी, ये जो ई स्पोर्ट्स का मामला है और अपने बीजीएमआई जो गेम्स की बात आप बात कर रहे हैं, उसका कुछ डिफरेंशिएशन बता दीजिए। ई स्पोर्ट्स ऐसा है कि जैसे कि बीजीएमआई गेम है, तो वो मैं नॉर्मली भी खेल सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी बैठ के अगर गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, वहां पे नॉर्मल कहते हैं ना कि क्लासिक मैचेस लगती है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है बीजीएमआई गेम, तो वो शायद हो सकता है कि वो मेरी मैच के अंदर है, अगर हम दोनों सेम टाइम पे प्ले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वो एक सो व्हाट इज क्लासिक द फुल मैच, फॉर्म ऑफ बीजीएमआई? बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। ओके, तो ओके, ये फाइन। तो तो ये गेम ऐसी है कि इसके अंदर आपको कहते हैं कि इंडिया के जो अलग अलग घर घर में या कहीं पे कहीं से भी कोई भी खिलाड़ी खेलता है, तो वो एक क्लासिक गेम प्ले होगी, वो कोई भी खेल सकता है। और यूजुअली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो क्लासिक गेम प्ले ही करते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसी गेम का एक लाइव स्ट्रीम करता है। जबकि तो ई आप गेम स्पोर्ट्स, खेल रहे हैं, आपका हाँ गेम लाइव स्ट्रीम हो रहा है और आपके साथ इंडिया में से या अब्रॉड में से भी कोई आपके साथ गेम खेल रहा है और वो सब देख सकते हैं। हाँ, वो कोई भी देख सकता है, इंडिया में से कोई भी मेरा लाइव गेम प्ले कर सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स देखते हैं कि ये लाइव कर रहा है, तो सेम टाइम पे वो भी प्ले बटन दबाने की कोशिश करता है ताकि वो हमारे मैच में तो वो खिलाड़ी आ जाए और हमको कहते हैं कि गेम के अंदर हमारे साथ compete कर पाए। ओह, लेकिन ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो एक कहते हैं ना कि एक मैनेजेबल टूर्नामेंट है। वहां पे कैसा रहता है ओके, कि बीजीएमआई जो गेम होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलरली रूम्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि जो गेम होता है, जैसे ओके, पर्टिकुलर मैच होती है, तो उसके अंदर इनवाइट एक कोड रहता है। वो इनवाइट कोड और पासवर्ड जब खिलाड़ियों के पास जाता है, वो डालते हैं, तभी वो उसी पर्टिकुलर रूम के अंदर, वो पर्टिकुलर लॉबी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक ओके। अलग लॉबी रहती है और वहां पे एक अलग टूर्नामेंट मतलब चलता है और वैसे ई स्पोर्ट्स रन करता है। वंडरफुल, वंडरफुल। आई थिंक बिकॉज सी टुडे इफ पीपल वांट टू गेट इनटू दिस, उन्हें वो बेसिक्स पता होने चाहिए और किस लेवल के प्रोफेशनलिज्म के साथ ये सारी चीजें मैनेज होती है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर हम आज आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो जनरली अगर हम 20 साल पहले की बात करेंगे, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो वी नेवर न्यू कि आईपीएल इतना बड़ा हो सकता है। और आज अगर हम देखेंगे, तो एक कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $2 बिलियन की हो चुकी है। तो कहां से कहां चीजें जा सकती है वो हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक द सेम होल्ड्स फॉर दिस ई स्पोर्ट्स ऑल्सो, इज व्हाट यू या ट्राइंग टू से। ओके, ग्रेट। व्हेन समबडी वांट्स टू गेट स्टार्टेड, मान लीजिए कोई युवा शुरू करना चाहता है, सम ग्रेजुएट वांट्स टू गेट स्टार्टेड, शुड ही फोकस ऑन द स्किल और शुड ही फोकस ऑन द कंटेंट? इसके लिए मेरे पास एक ब्यूटीफुल लाइन है। जैसे कि अभी आपने बोला कि स्किल्स पे फोकस करना चाहिए या फिर कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, तो मैंने एक ब्यूटीफुल लाइन सुनी थी कि आप कहीं से है ना एक बार शुरुआत करो और फिर उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करो। तो अगर कंटेंट क्रिएशन अगर स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ अगर स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, उसमें सीखने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से सीख लिया लेकिन आपको अभी कंटेंट कैसे बनाना है वही नहीं पता है, क्योंकि आपने अगर एक बार बनाया तो आप मिस्टेक्स करोगे और इंसान सबसे ज्यादा मिस्टेक्स से सीखता है। जब वो मिस्टेक्स को अपने स्किल्स के साथ ज्यादा अच्छे से डेवलप करेगा, तो मुझे लगता है कि उसका ग्रोथ डबल होगा। ओके, फैंटास्टिक। सो गेटिंग स्टार्टेड इज इंपॉर्टेंट। या ग्रेट, ओके। वेल, यहाँ पे आप और कुछ ऐड करना चाहिए? बिकॉज सी वी टिपिकली गो इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बिकॉज ये एग्जीक्यूशन सीरीज है। पर इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहेंगे कि एक नए गेमर को या नए कंटेंट क्रिएटर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए? कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर है तो उसको सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ उसको एडिटिंग भी सीखना चाहिए, उसको थंबनेल्स कैसे बना रहे हैं वो भी उसको सीखना चाहिए, बेसिक सीखने चाहिए उसको। कहते हैं कि जैसे कि अभी मेटा ने अपना खुद का एडिटिंग का एप्लीकेशन निकाला, तो वो कैसे उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में क्या क्या फीचर्स है, यूट्यूब में क्या क्या फीचर्स है, उसको हर चीज का एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। जबकि ज्यादातर लोग देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि कंटेंट बनाते हैं एंड देन बस कहते हैं कि किसी और से एडिट करा देंगे, फिर ये सब चीजें होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसको नॉलेज रहना चाहिए कि ताकि कभी भी उसको जरूरत पड़े तो वो खुद भी कर सके और उसको भी एक बेसिक्स क्लियर हो। करेक्ट, इट इज, वी शुड बी अवेयर कि किस तरह से हो रहा या है। ओके, फेयर इनफ। तो आपके हिसाब से मान लीजिए वायरलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से आप वायरल गए या किसी को वायरल जाना है, तो क्या मसाला है, क्या फॉर्मूला है उसका? वायरल यूजुअली तो ऐसा होता है कि कंटेंट में है ना वाव फैक्टर होना चाहिए। ओके, वाव फैक्टर अगर कंटेंट के अंदर आ गया तो लोग वो चीज को देखेंगे ही देखेंगे। ज्यादातर आप कोई भी वायरल रील उठा के देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक वाव या लॉल टाइप का फैक्टर है कि यार ये क्या चीज है।
तो ओके। मैंने जब ये चीज नोटिस की, तो जब मैं बीजीएमआई वगैरह गेम पे फोकस कर रहा था, तो वहां से मेरे को उतना वायरल नहीं हो पा रहा था मैं एक टाइम तक। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ यूनिक करना चाहिए, मुझे कुछ जो लोगों के ध्यान में हो, जो लोगों को पसंद हो, और लोग उस चीज को देखेंगे। तब मैंने ये चीज सोची कि भाई क्रिकेट जो गेम है वो हर किसी को पसंद है। हम लोगों ने बचपन में कहते हैं ना कि छोटे वाला कीपैड मोबाइल है, उसके अंदर भी हमने क्रिकेट की गेम खेली हुई है। तो मुझे ये पता है कि इंडिया में क्रिकेट देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्रिकेट की गेम कितने लोग खेलते हैं, मोबाइल के अंदर खेलते, वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता। तो तब मेरे को एक आइडिया है कि वीआर में भी क्रिकेट गेम खेल सकता है। मैंने वहां ओके। पे वीआर परचेस किया, फिर मैंने वीआर क्रिकेट जो गेम है वो डाउनलोड किया। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन इसको रील फॉर्मेट में बनाऊंगा, क्योंकि रील फॉर्मेट में ये चीज कोई नहीं करता था उस टाइम पे। ओके। तो मैंने वहां पे एक अपनी अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ, गेमिंग में ये सब चीज भी हो सकती है। तो वहां से मेरा वायरल होने की एक शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं इस चीज में वायरल हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने कंटेंट मेरा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। और फिर कहते ओके। हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस जब लोगों के पास मिल जाते, तो फिर मैं सोचा कि अब तो यार ये लोगों ने ये भी कॉपी कर दिया। फिर मैंने अपना एक और वायरल होने का तरकीब ढूंढा कि अब ऐसी क्या चीज हो सकती है जो लोगों को और ज्यादा पसंद आए। तो वहां पे मैंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि जो ड्राइविंग सिमुलेशन है, वहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था आर राजेश व्लॉग्स, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुए। मैंने देखा कि ये रियल लाइफ में ट्रक चला रहे इतने वायरल हुए। यही चीज ओके। अगर मैं गेम के अंदर करता हूँ, एक इंडियन ट्रक चला रहा हूँ, और मैं लैंग्वेज भी ऐसे कहते हैं ना कि देसी ट्रक ड्राइवर टाइप यूज करूँ, या तो वो लोगों को कैसा हिट करेगा कि गेम के अंदर भी ओके। ये सारी चीज हो सकती है। तो वहां से मेरा एक शुरुआत हुआ कि मैं राजस्थान की एक कहता है ना कि लोकल बस होती है, तो मैंने उसके ऊपर मैंने ड्राइविंग वाला एक वीडियो बनाया। तो वो सडनली वायरल हो गया। वो मीम्स पेज में ओके। भी बहुत जगह पे वायरल, मीम्स पेज से लेके इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो ओके। तब जाके मेरे को लगा कि हाँ, कि कहीं ना कहीं बार बार कुछ नया ढूंढो और उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि लोगों को वो पर्सनल फील हो। इन शॉर्ट जजेबे की गाड़ी निकल पड़ी। या ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे आप तो वायरल हो चुके हैं। आपने किस तरह से आपका ये 1.5 मिलियन का जो फॉलोइंग क्रिएट किया है? आप तो छाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह पे। तो किस तरह से आपने ये 1.5 मिलियन का पूरा फॉलोइंग बनाया? क्या इट वॉज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रेटेजी तो नहीं है, शुरुआत में तो एक ऐसा था कि शुरू कर लेते हैं, फिर देखा ओके। जाएगा धीरे धीरे कैसे ग्रोथ करते हैं। फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरे को कौन से वीडियो से ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, मैं किस ओके। टाइप का कंटेंट बनाता हूं तो लोग ज्यादातर फॉलो बटन दबाते हैं। तो मैंने उस पर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे ग्रोथ मिलने लगी। क्योंकि जब यूट्यूब की बात कर रहा हूं, तो यूट्यूब की मेरी जो कोर ऑडियंस है वो बीजीएमआई गेम की है। तो वो ओके। पर्टिकुलरली लाइव स्ट्रीम से मैंने वहां पे ऑडियंस बिल्ड की है। फिर धीरे ओके। धीरे मेरे को लगा कि अब लोगों को कैसे चेंज करूं। तो मेरे जो वीडियोस थे वो रील के थ्रू वायरल हुए, सिमुलेशंस के, वीआर क्रिकेट के। तो वहां से भी मुझे बहुत ज्यादा ऑडियंस मिली, और फिर मैंने उस कंटेंट पे भी फोकस किया। सेम चीज अगर मैं इंस्टाग्राम पे लूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम हो, या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरी ऑडियंस बीजीएमआई की बिल्कुल नहीं है। वहां पे ओके। सिमुलेशन गेम्स हो या फिर वीआर क्रिकेट की गेम हो, वो ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने अपने ऑडियंस पे फोकस किया कि मेरे को किस टाइप की ऑडियंस कहाँ पे कैसे फॉलो करती है। वो चीज फॉलो करके मैंने एक अपना ग्राफ बनाया, और उसी पर्टिकुलरली कंटेंट पे फोकस किया, और वैसे मैंने फॉलोइंग गेन किया। ओके, विच मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू से कि आपने सिर्फ गेम प्ले पे फोकस नहीं किया, आपने अपना एक पर्सनली ट्रेट भी बनाया और कुछ आपने एक एज बनाया जिससे लोग आपको फॉलो करते हैं। या ओके, डू यू मीन टू से कि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी हु इज गोइंग टू बी कमिंग इन फॉर अ लॉन्ग रन? श्योर, क्योंकि एक क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, लोगों को क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑडियंस तो एक टाइम के बाद चेंज होने वाली है। क्योंकि ओके। हमको जो 2019 2020 में जो हमको ऑडियंस दिखती थी, वो ऑडियंस बहुत अलग थी। वो ऑडियंस आज मैच्योर हो चुकी है, वो आज शायद कोई और कंटेंट देख रहे हैं। कल को कोई नई ऑडियंस आएगी, वो कुछ और कंटेंट डिमांड करेगी। तो उनके हिसाब से हमको भी थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा, और हमको भी अपना एक स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, सो टुडे व्हाट यू फोकसिंग ऑन? व्हाट इज योर नेक्स्ट 6 months या नेक्स्ट 1 year प्लान? मेरा एक साल तक यही प्लान रहेगा कि मैं वीआर पे कंटेंट पे फोकस करूं, क्योंकि वीआर में भी बहुत ज्यादा गेम्स आ रही है। और वर्चुअल रियलिटी ऐसा है कि वो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। जब मैंने वीआर परचेस किया था, तब इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो वीआर अपने पास परचेस करते थे और उससे गेम खेलते थे। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने सिर्फ मेरे पर्टिकुलर वीडियो देख के, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोगों ने वीआर बाय किया है और लोगों ने गेमिंग स्टार्ट किया है। और उसका मैं पर्टिकुलर रीजन ये बता सकता हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने ये वीआर क्रिकेट को प्रमोट किया,
तो उन्होंने मेरे को एक एफिलिएट लिंक भी दिया था जिससे भी मेरा एक अर्निंग हुआ था। तो वहां से भी मेरे को पता चला कि मेरी लिंक से कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग वीआर परचेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अभी इंटरेस्टिंग। मेरी वीआर क्रिकेट जब ग्रो हुआ तो मेरे को अब लगता है कि वीआर का जो और भी जो गेम्स है वो भी आने वाले टाइम पे ग्रो करने वाली है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि सिमुलेशन गेम्स जो है उस पर मैं ओके। बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि सिमुलेशन गेम्स भी अभी धीरे धीरे लोगों के नजर में आ रही है। और अभी तो एक नई गेम्स भी आने वाली है सिमुलेशन, तो वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ब्लास्ट करने वाली है, तो उस पर फोकस फैंटास्टिक। करूंगा। तो ये सारी जर्नी में कहीं पे आपको ऐसा लगा कि यार मैंने वो एक गलती कर दी ना, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया? व्हाट इज दैट वन मिस्टेक विच यू वुड लव टू अवॉइड, या आपने की तो आपको लगा कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था? मैंने बीजीएमआई गेम को बहुत ज्यादा कहते हैं कि इम्पोर्टेंस दे दिया। मुझे लगता है कि ये गेम ने मेरा करियर बनाया है, ये गेम ने मेरे को सब कुछ दिया है। लेकिन ये पर्टिकुलरली गेम ऐसा है कि अभी ये ई स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा झुक चुकी है ये गेम। एक टाइम था जब बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, उनकी लाखों की वॉचिंग आती थी लाइव के अंदर, लोग उनकी गेम प्ले देखने के लिए लाखों की अमाउंट में आते थे। लेकिन आज के टाइम पे उनका भी ग्रोथ देखा जाए तो उनको 1000 2000 लोग मुश्किल से देखने आ रहे हैं। तो ये एक गेम में अगर जो लोग फंसे हुए हैं ना, उन सबका ये चीज सेम प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने एक चीज जो इम्प्रूव की बाद में जाके, कि मैं बाकी गेम्स पे भी फोकस करने लगा, जिसकी वजह से मेरे को एक क्लियरिटी मिली कि हाँ अब जाके इस इंडस्ट्री में प्रॉपर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर। ओके। और ये सारी जद्दोजहद के दौरान आपने एज ए गुजराती क्रिएटर, एज ए गुजराती गेमर, તમે શું વિચાર્યું કે હું ગુજરાતીમાં આખી આ ગેમને પુશ કરીશ અને મારું નામ બનાવીશ? શું વિચારો તો તમારો કે ગુજરાતી તરીકે તમને એવું થયું કે બોસ આમાં મારે નામ કમાવાનું છે? વોટ વોઝ ધ થોટ? ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે પર્ટિક્યુલરલી ગ્રો કરી રહી છે। આપણને બધાને ખબર છે કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી લઈ લો, કન્ટેન્ટ ક્રિએશન લઈ લો, કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રી જે સોશિયલ મીડિયામાં ચાલી રહી છે, એ ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે બહુ જ ગ્રો કરી રહી છે। ફૂડ થી લઈને ટ્રાવેલ થી લઈને હર એક કહેવાય ને પર્ટિક્યુલરલી પ્લેટફોર્મ ઉપર બધા જ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર વાયરલ થઈ રહ્યા છે। પણ ગેમિંગ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર એક એવા છે કે જે અત્યારે મને વાયરલ નથી દેખાતા, અને એ વાયરલ હોય તો કોઈ કહેવાય ને કે કોઈ ડાયરાનો કોઈ ડાયલોગ હોય એ લઈને ઉપાડીને ગેમિંગની સાથે મેચ કરીને વાયરલ થાય। તો મને એવું લાગ્યું કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક પુશની જરૂર છે, અને એક લોકલ ઓડિયન્સ બી હોવી બહુ જરૂરી છે, જેના કારણે મેં એક અલગ પેજ પણ ક્રિએટ કર્યું છે। અને એના થ્રુ બી મારી એક ઈચ્છા છે કે મારી પાસે લોકલ ઓડિયન્સ હોય, જે આવનારા સમયમાં જ્યારે પણ મારે કહી શકાય કે મારા સિટીમાં કે પછી મારા સ્ટેટમાં ક્યાંય પણ ગેમિંગ ઇવેન્ટ હોય તો યુઝ્યુઅલી ત્યાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને, ત્યાં લોકલ કન્ટેન્ટ ક્રિએટરને બોલાવવામાં આવે છે। તો મારો એમ એ જ છે કે લોકલ કન્ટેન્ટ ક્રિએટરમાં સૌથી પહેલા કોઈ ક્રિએટરનું નામ હોય તો એ મારું હોય। ફેન્ટાસ્ટિક। તો જયેશભાઈ, તમે શું વિચારો છો કે તમે એવી કોઈ ઇવેન્ટ કરવા માંગો છો ગુજરાતમાં રહે, ગુજરાતીઝમાં રહે, ગુજરાત જે આપણા યુવાનો છે એમના માટે શું કરવા માંગો છો? વેલ, હું પર્ટિક્યુલરલી તો અત્યારે કોઈ ઇવેન્ટ કરું એના માટેનો તો મારો કોઈ એમ નથી, પણ હા મારો એ એમ છે કે હું ગુજરાતી ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક બૂસ્ટ આપી શકું। કહી શકાય કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેમ્સ જયારે હું રમીશ, જયારે અંદર હું એમાં ગ્રો કરીશ, લોકોને કહી શકાય કે ફન સાથે જયારે એ લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ આપીશ તો એ લોકોને બી કંઈક દેખાશે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગ્રોથ, કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સાચેમાં ગ્રોથ કરી શકાય છે। નવી નવી ગેમ્સ જયારે એ લોકો ફાઇન્ડ કરશે, જયારે કહી શકાય કે ઇન્ટેલિજન્સ વધારવા વાળી ગેમ્સ બી જયારે એ લોકો ફોકસ કરશે, ત્યારે એ લોકોને આઈડિયા આવશે કે હા કે આ વસ્તુને ફોલો કરવા જેવી છે। ઓકે, અઝ્યુમિંગ કે આપણા જે સત્તાધીશો છે, આપણી સરકાર છે, આપણા ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ છે, એમના થ્રુ, એમના થકી અને એમના સુધી આ વિડીયો જાય છે, અને એ લોકો પ્રોગ્રેસિવ માઇન્ડસેટ છે, કમ્પ્લીટલી આપણી જે ઓથોરિટીઝ છે, આપણા જે ઓફિશિયલ્સ છે, દે હેવ કમ્પ્લીટલી ડેવલપમેન્ટ માઇન્ડસેટ, અને એ યુવાનો માટે ખાસ વિચારી રહ્યા છે, તો એમને તમે શું સંદેશો આપશો આ એસ્પેશિયલી ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે? ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી થ્રુ અગર મારે ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલને કંઈક સંદેશો આપવો હોય તો હું એમને એ જ આપી શકું કે ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે બૂસ્ટ કરી રહી છે, અને એની સાથે સાથે જોડાવવું પણ બહુ જરૂરી છે। અગર આજના સમયમાં આપણે જોઈએ તો ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને એ સાથે સાથે આપણે 2-3 સ્પોર્ટ્સ જોઈએ ને તો એની સાથે સાથે સૌથી હાઈએસ્ટ વ્યુઅરશિપ આપવા વાળી કોઈ અગર કોઈ વસ્તુ છે તો એ ગેમિંગ છે। અત્યારે ગેમિંગની અંદર જ સૌથી હાઈએસ્ટ વોચિંગ આવી રહી છે આ 2-3 પર્ટિક્યુલરલી સ્પોર્ટ્સને લઈને અગર વાત કરીએ તો ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી બૂસ્ટ થઈ રહી છે, અને આપણી ગવર્મેન્ટ બી એ વસ્તુ પર ફોકસ કરી રહી છે। પણ હા, એ લોકો સિમ્યુલેશન ગેમ્સ તરફ પણ ફોકસ કરી શકે, જ્યાં એમને એવું લાગતું હોય કે ફાઇટિંગ વાળી ગેમ્સ ક્યાંક ને ક્યાંક અગર હાર્મફુલ હોઈ શકે તો એ લોકો સિમ્યુલેશન ગેમ્સ પર પણ ફોકસ આપી શકે, જ્યાં કહી શકાય કે નાના જે છોકરા હોય એમને પણ એક કંઈક ને કંઈક શીખવા મળી શકે, એમના માઇન્ડમાં એક સારું એક ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે। કેમ કે સિમ્યુલેશન ગેમ્સ છે, જેમ આપણે વાત કરીએ સ્કાયલાઇન ગેમની,
તો એક સિટી કઈ રીતના બિલ્ડ કરવી જોઈએ, સિટીની અંદર શું શું વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, લોકોને એ વસ્તુ શીખવાડે છે સિમ્યુલેશન થ્રુ. પછી આપણે જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક મિકેનિક વાળું સિમ્યુલેશન છે, ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટોર વાળું સિમ્યુલેશન છે, જોબ વાળું સિમ્યુલેશન છે. તો એવા અલગ અલગ સિમ્યુલેશન છે. આર્કિટેક્ચર વાળું સિમ્યુલેશન છે કે એક બિલ્ડિંગ છે એની અંદર કઈ રીતના આર્કિટેક્ટ કરવું, એવી પણ આપણી પાસે ગેમ્સ છે, એવા પણ આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે. તો સિમ્યુલેશનમાં અત્યારે તો તમને કહું, મારી પાસે બહુ બધી ગેમ્સ છે જે હું નામ બી નહીં લઈ શકું. તો એના થ્રુ કહી શકાય કે સ્ટુડન્ટ્સને નોલેજ આપી શકાય કે કઈ રીતના એ ઇન્ડસ્ટ્રી વર્ક કરે છે. સપોઝ કે કોઈ નાનો છોકરો છે, એને નથી ખબર કે જોબમાં જઈને એ કઈ રીતના એને કામ કરવું છે, તો એ ગેમને થ્રુ એ વસ્તુ શીખી શકે છે. અને યુઝ્યુઅલી વાત કરીએ તો જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે, 90% થી લઈને 95% મે બી આઈ થિંક 100% બધાને ગેમિંગ પસંદ જ હોય છે. નાના છોકરાઓને ગેમ્સ જ રમવું પસંદ હોય છે. તો એની ओके થ્રુ પણ કહી શકાય કે છોકરાઓની અંદર એક આઈડિયાઝ પણ બિલ્ડ કરી શકાય છે. ओके सो बॉटम में आप ये कह रहे हैं जयेश भाई कि अगर एट ए गवर्नमेंट लेवल, एट एन अथॉरिटी लेवल, एट ए डिसीजन मेकिंग लेवल, एट ए पॉलिसी लेवल, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट को फोकस करेंगे, हम किड्स का फ्यूचर जो उसको सिक्योर करना चाहेंगे, उन्हें सही दिशा में गेमिंग के साथ आगे लेके जाना चाहेंगे, हम डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं गेमिंग में वो अपॉर्चुनिटी है, वो पॉसिबिलिटीज है और वो पोटेंशियल है कि उसको सही दिशा में लेके जा सकते हैं. जी हाँ, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं ना गेमिंग की, तो गेमिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर ई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे गेम टेस्टिंग हो गया. अभी हम ओके देखें तो बाहर की कंट्रीज में गेम टेस्टिंग भी एक पर्टिकुलरली जॉब है, जहाँ पे जो हार्डकोर गेमर होता है उनको ओके सिर्फ गेम एज ए गेम टेस्टर रखते हैं कि वो पूरा दिन गेम खेलेंगे और गेम के अंदर क्या क्या बग्स है, गेम के अंदर क्या क्या चीजें फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए भी एक पर्टिकुलरली जॉब है. लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया में बात करी जाए तो आने वाले टाइम पे जब गेमिंग कंपनीज जब अपनी अपनी नई नई गेम्स लॉन्च करेगी तो वो कहते हैं कि गेम टेस्टर तरीके भी बहुत सारे लोगों को ये चीज जॉब मिलने वाली है. इवन हमारी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है या फिर जितने भी पढ़ाई करने वाली जगह है वहां पे गेमिंग के क्लासेस होने वाले हैं. तो आने वाले टाइम पे अगर ये सब चीजें सिमुलेशन से लेके गेम टेस्टिंग से लेके गेम डेवलपमेंट अगर इस चीज पे फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि गेमिंग को एक फुल फोकस करियर देखेंगे स्टूडेंट्स भी और फिर साथ साथ पेरेंट्स भी. Okay, so I think this could be a full-time career and minus the negative aspect of it, which is the concern of everybody. उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे प्लसेस है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए. या Okay, great. As a regional language creator, assuming let's say somebody's, I mean, India is full of languages. We have got more than 500 languages across India and functional 50 plus languages. तो एक रीजनल कंटेंट क्रिएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज है? रीजनल कंटेंट क्रिएटर में ये मुझे लगता है कि क्योंकि वहां की अगर लोकल ऑडियंस उसके पास है ना तो उसका बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आता है. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नेशनल ऑडियंस अगर आपके पास नहीं मिल रही लेकिन आपके पास एक रीजनल ऑडियंस है तो अब वहां पे भी बहुत सारी ब्रांड्स को कहते हैं कि अब उनको बुला सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स होती है जो लोकल कंटेंट क्रिएटर ढूंढते हैं. पर्टिकुलरली अगर मेरी बात करूं तो मेरे अहमदाबाद में जब भी कोई गेमिंग इवेंट होती है, किसी भी स्टोर के Okay. अंदर टूर्नामेंट्स वगैरह होती है, तो उनको एक लोकल क्रिएटर चाहिए. वहां पे वो लोग एक लोकल क्रिएटर को ही फाइंड करते हैं. अब बात करूं मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर गुजरात की है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे को हर बार बुलाते हैं कि भाई तुम यहाँ पे आओ. तो तब मेरे को वहां पे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर मैं लोकल ऑडियंस को ज्यादा अगर एंगेज करूंगा तो यहाँ के लोग भी जानेंगे कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, क्या क्या मेरे को लोग किस तरह से पहचानते हैं, मैं क्या क्या आइडियाज नहीं ला सकता हूँ गेमिंग के अंदर. तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए एक रीजनल कंटेंट क्रिएटर बनना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जिसके लिए मैंने अपना खुद का एक अलग गेमिंग पेज बनाया. लेकिन मुझे लगता है अगर कोई अलग इंडस्ट्री में गुजराती कंटेंट बना रहा है तो वहां पे भी बहुत सारी ऑडियंस है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं ना कि लोकल जो लैंग्वेज होती है उसको प्रमोट करना चाहता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो सिंस आपने पूरे आयाम की बात की है, बिकॉज गेमिंग के प्लस माइनस सब कुछ आपने बताया है, तो पेरेंट्स जनरली सोचते हैं कि यार गेमिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नंबर वन. नंबर टू, वो सोचते हैं ये फिर इसका पैशन है पर इसमें से पैसे वैसे नहीं बनेंगे. तो एक्चुअल रियलिटी क्या है, आप पेरेंट्स के लिए बताइए. एक्चुअल रियलिटी ये है कि देखो अभी पेरेंट्स को है ना अभी भी ट्रस्ट नहीं है. बहुत सारे पेरेंट्स को ऑलरेडी ट्रस्ट आ चुका है जिन्होंने देखा है कि हाँ ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है,
जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मे बी आने वाले टाइम पे उनको थोड़ा ट्रस्ट आएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने कुछ जो चाइनीज भी गेम्स थी उनको भी अभी अनब्लॉक किया है रिसेंटली, कि जो आने वाले एशिया गेम्स या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली हो, जैसे कि क्या कहते हैं कि उनको पता है कि आने वाले टाइम में गेमिंग बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है, तो उन्होंने यही चीज सोची है, जिसकी वजह से उन्होंने एक दो गेम्स को अनबैन किया है। और ओके। अभी यही है कि अभी वो गेम पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग वो चीज पे जब फोकस करेंगे, जब पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ हमारे क्या बोलते हैं इंडिया के लड़के ओलंपिक्स में भी जाके खेल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब 15 16 17 साल के बच्चे जब जाके वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं क्लियर आएगा। जब हम देखते हैं कि आज के जमाने में हमारे पास नीरज चोपड़ा है, तो उन्होंने जब भाला फेंका, लेकिन वो भाला जब तक गोल्ड नहीं दिलाया तब तक उनको भी बहुत कम लोग थे जो उनको पहचानते थे। लेकिन जब उन्होंने वो गोल्ड मेडल लिया तो पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं लगा कि हाँ स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं। वही सेम चीज होने वाली है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ओह, परफेक्ट परफेक्ट। ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी ये जर्नी में आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। सो डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि लोगों में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ यू वांट टू मेक अ सक्सेसफुल करियर देयर विल बी सम सेक्रीफाइसेस? सेक्रीफाइसेस तो मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि टाइम बहुत जाता है। आप कंटेंट बना रहे हो, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, वायरल कंटेंट बना रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि जब आप कोई चीज प्रोडक्ट परचेस कर मतलब कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और जब उसको प्रमोट कर रहे हो लेकिन उस पर अगर आपको व्यूज नहीं आते, तो अगली आगे की जो ब्रांड है वो भी चाहेगी कि ऐसे वीडियोस पे अगर व्यूज नहीं आ रहे तो जो दूसरी ब्रांड से वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होगी। तो अपने एक कहते हैं कि एक ब्रांड वैल्यू जब तक नहीं बनती तब तक हर एक क्रिएटर की लाइफ में सेक्रीफाइसेस बहुत है, तब तक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप वायरल हो जाओगे, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, लेकिन फिर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब तक आप अपने आप को एक ब्रांड ना बना दो खुद ही। ओके। एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ब्रांड फॉर योरसेल्फ, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हमने आपके पेज पे देखा है, आपने इतनी ज्यादा बड़ी फॉलोइंग बना ली है, ऑलमोस्ट 1.3 1.5 मिलियन फॉलोइंग है आपके सोशल मीडिया पे। तो अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अगले 2 साल में सर सबसे पहले तो मुझे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, क्योंकि ऑल ओवर सोशल मीडिया में देखा जाए तो 1.5 हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पे मेरे अभी देखा जाए तो 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है। तो मेरा ये गोल है कि मुझे यूट्यूब के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा ये टारगेट है कि मैं जैसे तैसे करके, अभी मेरे 70 के अप्रोक्स 69 के अप्रोक्स मेरे फॉलोवर्स हैं। तो अगर आने वाले 2 साल के अंदर देखें तो मेरा ग्रोथ यही रहेगा कि मैं 2.5 से 5 लाख तक फॉलोवर्स पहुंचू, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो थोड़ी ज्यादा मैच्योर है और थोड़ा ज्यादा पर्सनलाइज करती है किसी को भी फॉलो करने से पहले। और सेम करेक्ट। चीज अगर मैं फेसबुक की देखूं तो फेसबुक पे अभी मेरे करीबन 6,76,000 अप्रोक्स फॉलोवर्स है। तो मेरा इंटरेस्टिंग। फेसबुक पे भी 1 मिलियन का टारगेट रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक कनेक्ट हो पाऊं। Correct. And during this journey, do you think you will be able to contribute at a larger level to the society? आप किस तरह श्योर, से मेरा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मैं कंट्रीब्यूट इसी तरह से करना चाहूंगा कि मैं सिमुलेशन गेम्स के थ्रू लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हाँ गेमिंग एक अच्छी जगह भी है जहाँ पे लोग अपना टाइम और लोग अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गेमिंग को एक मजाक की तरह देखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ मजाक नहीं होता, यहाँ पे सीरियस चीजें भी होती है, यहाँ पे माइंड भी डेवलप होता है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कहते हैं ना कि ब्रेन भी डेवलप होता है साथ में। ओके। मैं थोड़ी नेगेटिव बात करूंगा बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ पर्सपेक्टिव टू द ऑडियंस। जो इसको सुन रहे हैं उनको लगना चाहिए कि ये अनबैस्ड बातें कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग या ऑलरेडी कर रहे हैं। assuming a parent is watching this and he or she wants to know कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं ग्लोबल लेवल पे, अनसर्टनिटीज है, और सब कुछ आपका आज जो है आपके पास, जो आपकी फॉलोइंग है वो जीरो हो जाती है, तो आप किस तरह से शुरू करेंगे? अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं उन गेम्स पे फोकस करूंगा कि जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हार्मफुल ना हो, और कैसे कि गवर्नमेंट जिस चीज को अप्रूव करेगी उसी चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। जो जो अच्छी अच्छी गेम्स होगी हम उन पे फोकस करेंगे। आज भी हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स हम लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो मेरा ये फोकस रहेगा कि स्टार्टिंग फेज में मैं रील्स और शॉर्ट्स पे ग्रो करने का ट्राई करूं। मान लो मैं जीरो पे हूं, मेरे पास कुछ नहीं है,
तो मैं रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम ऑडियंस के पास कनेक्ट हो, क्योंकि अभी देखा जाए तो ज्यादातर वही गेम्स बैन होती है जो हार्मफुल टाइप, कहते हैं कि गेमिंग के अंदर कुछ चीजें आती है तो वहां पे उस गेम का बैन होना तय होता है, लेकिन जिस गेम के अंदर किसी भी प्रकार की हार्मफुल चीजें नहीं होती, जैसे कि ड्राइविंग सिमुलेशन हो गया, तो वो पेरेंट्स को चीजें सिखा सकती है कि हाँ ये चीज तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा इसको गेम खेलेगा। ओके। So you will to say you will start with a new fresh approach या without losing hope, and you have things sorted out. क्योंकि मेरे को पता है कि किस टाइप की गेम बैन होने वाली है अगर होगी तो, और किस टाइप की गेम पे हम सडनली शिफ्ट कर सकते हैं। मेरी अगर बात की जाए तो मैं ऑलरेडी कुछ गेम से अपना हाथ कैसे कैसे धो चुका हूँ और बाहर निकल चुका हूँ इस चीज से। मुझे जब ये एक फेज एक बार हमारी लाइफ में आ चुका है तब हमने ये चीज सीख ली है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हो सके तो जो हेल्दी गेम्स है जिससे लोगों को नॉलेज मिले, जैसे कि ड्राइविंग सिमुलेशन गेम्स होगी जिसके अंदर अगर कोई बच्चा कोई पेरेंट ये चीज देख रहा है तो उनको पता है कि आज उनका बच्चा सिर्फ नॉर्मली गेम खेलेगा, लेकिन कल वो बच्चा शायद ड्राइविंग भी सीख सकता है। फिर जैसे सुपरमार्केट सिमुलेशन हो गया, तो सुपरमार्केट को कैसे रन करता है, तो कल को उनका बच्चा वो भी सीख सकता है कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है। फिर साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी गेम्स है, अभी पर्टिकुलरली मैं बात करूं, मैं यूट्यूब पे एक गेम खेल रहा था, वो फैमिली प्लानिंग वाली गेम है जो यूट्यूब Okay. पे ऑलमोस्ट फ्री गेम है, यूट्यूब पे आप खेल सकते हो, मतलब वो कोई गेम को डाउनलोड नहीं करना, वो Interesting. यूट्यूब पे गेम है। मेरे को लगता है ये गेम को आप मेंशन भी कर सकते हो, ये गेम के बारे में किसी को नहीं पता होगा, मैं ऐसे ही मजाक मजाक में खेल रहा था। तो उस गेम के अंदर कैसी चीज है कि आपके पास आप एक फैमिली हेड हो, फिर धीरे धीरे आपको फैमिली प्लानिंग करनी है कि आपके फैमिली में कब आप शादी करोगे, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, फिर आप कैसे बिजनेस करोगे, कैसे आपके पास पैसे आएंगे, आप किस तरह से ग्रो करोगे, आप अपने आसपास प्रॉपर्टी लोगे, फिर साथ में आप प्रॉपर्टी ले लिया, आपकी लाइफ एक सेटल हो गई, आपकी एक अच्छी एज हो गई, आपके कहते हैं कि बच्चे वगैरह सब हो गए, फिर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के आप क्या कहते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हो, आप कैसे लोगों से बातचीत करोगे, आप कैसे उस चीज को प्रमोट करोगे कि आप एक अच्छे नेता हो, आप क्या क्या पॉलिसीज लागू करोगे, तो उससे आपके परसेंटेज बढ़ते हैं कि कौन आपको वोट करेगा। अगर आप गलत चीज सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको लोग वोट माइनस में आएगा कि हाँ कि आपकी पॉपुलैरिटी माइनस हुई है। तो ये एक बहुत बढ़िया गेम मैंने यूट्यूब पे देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इस टाइप की भी गेम्स होती है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये सारी गेम्स होगी जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट लाएगी, लोगों को और इंटरेस्ट आएगा ये सब गेम्स जब वो लोग देखेंगे, तो पेरेंट्स भी इस चीज को अप्रूव करेंगे। और अगर होता है कि कल को जीरो हो जाए हम लोग, तो उस चीज से वहां से शुरुआत करके हम लोग वापस कम बैक कर सकते हैं। Correct. So you would say, Jay, what you're trying to say is gaming is not only for entertainment. There are a lot of other things. There is learning, there is development, there is progress, and there is a future aspect to it. So I think हमें सिर्फ इसे entertainment aspect से नहीं देखना चाहिए, उसके बहुत सारे और आयाम भी है। श्योर। Correct. Okay. Now I think we have been talking to you for almost an hour. मैं ये समझना चाहूंगा कि अभी आपसे थोड़ा खजाना निकालेंगे हम लोग, तो थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। श्योर। तो आप तैयार हैं? जी जी जी। ओके। मुझे ये बताइए कि अगर एक सक्सेसफुल गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनना है, जो आप ऑलरेडी हैं, एक लाइन में बताइए एक सक्सेस फॉर्मूला, क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंट रहो और अपना एक इमेज क्लियर रखो कि क्या करना है। फैंटास्टिक। एक जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने सक्सेसफुल में बोला कंसिस्टेंसी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इनकंसिस्टेंसी, वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कोर ऑडियंस को अगर ना समझे तो एनालिटिक्स देखना चाहिए, अगर वो नहीं देख रहे हो ना तो वो सबसे बड़ी गलती है। ओके। व्हाट इज वन प्लस पॉइंट आई थिंक विच अदर क्रिएटर्स, मैंने देखा है आपके पेज पे के नेशनल लेवल क्रिएटर्स हैं, जो बड़े नामी गिरामी क्रिएटर्स हैं, मुझे पता नहीं कि उनके नाम यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप शायद ले सकते हैं, तो वो आपको क्यों फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं आप में? मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ यूनिक कंटेंट डाला है जिसकी वजह से उन्होंने भी मेरे को फॉलो किया है, उन्होंने भी देखा है कि मैंने ग्रोथ किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कहते हैं ना कि मैंने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं बात करूं ना, मैंने यहाँ पे हम लोगों ने सारे प्लेटफॉर्म की बात की लेकिन एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं की, वो है टिकटॉक। जब कोविड के ओके। दौरान टिकटॉक भले बैन हो गया, लेकिन इंडिया में जब ई स्पोर्ट्स को कहते हैं ना कि जब लोग जानते नहीं थे ई स्पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे इसके कस्टम्स खेलते हैं, कैसे ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब ई स्पोर्ट्स का कोई वीडियो भी नहीं बनाता था उस टाइम पे, अगर किसी ने स्टार्ट किया हो तो मैं टिकटॉक पे उस टाइम पे वीडियोस बनाता था कि कैसे टूर्नामेंट खेली जा सकती है, कैसे टूर्नामेंट कब आ रही है, कब इसका रजिस्ट्रेशन टाइम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं उस टाइम पे बनाता था। मेरी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा
जो टिकटॉक वीडियोस थे वो वायरल हुए थे, मेरे अराउंड 4,30,000 अप्रोक्स मेरे टिकटॉक पे भी फॉलोइंग हो चुकी थी। तो ओके। वहां से मेरा एक ग्रोथ हुआ था, जिसकी वजह से बाकी क्रिएटर्स ने भी, बहुत सारी क्रिएटर्स ने नोटिस किया कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि इसको फॉलो करना चाहिए। Okay. And one regret which you have learned probably from last whatever years you're working as a gamer, as a content creator, एक regret आपका? कनेक्शन नहीं बनाना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ लोगों से, लाइक जो इस इंडस्ट्री में है उन लोगों से भी, जैसे कि कोई फेलो क्रिएटर है तो उनके साथ आप दोस्ती यारी रखते हो, बुलाते हो, कई इवेंट में मिलते हो, लेकिन उसके बाहर भी एक लाइफ है जहां पे आप उनके साथ कहते हैं कि एक कनेक्शन बना सकते हो, जो आपको कंटेंट में भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं आप पीछे पड़ रहे हो, आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो वो आपसे शेयर करेंगे। यूजुअली अगर आप ऐसे कोई इवेंट में मिल रहे हो, आप उनसे पूरी प्रॉपर बात नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपका उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन है तो आपके साथ फ्रेंडली होकर वो आपसे बात शेयर कर सकते हैं, वो उनका एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। So building human connections. या Okay, great. आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि अभी तो फिलहाल एक कहते थे कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बनाना, और पर्टिकुलरली अभी एक ये भी फोकस है कि जो गुजरात स्टेट है उसमें एक बड़ा एज अ गेमिंग क्रिएटर मुझे नाम बनाना है। ये एक भी मेरा फोकस है, ये भी एक गोल है, और साथ ही साथ एक नेशनल लेवल पे भी फोकस है, लेकिन वो सिमुलेशन के अंदर है। Okay, great. And if you have to suggest one thing to the young generation, somebody who is just 18, उसे अपनी लाइफ के बारे में क्या सलाह देंगे आप? Just one thing. जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही करो। आपको 10 लोग बोलेंगे कि ये कर वो कर ये कर वो कर, लेकिन आप किसी की भी मत सुनो। आपको जो चीज लगती है एक बार वो करो, लेकिन उस चीज में दलदल की तरह घुस जाओ, फिर बाहर निकलना ही नहीं है। Okay. And what is one no-no? आप बोलेंगे ये मत करो। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट बनाना, किसी के बारे में ज्यादा कंट्रोवर्शियल करके वायरल होने की कोशिश करना। ठीक है, आपकी किसी से कंट्रोवर्सी होती है छोटी मोटी, वहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ ओनली कंट्रोवर्सीज पे फोकस करना, चाहे वो गेमिंग हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में अगर ये सिर्फ यही करते हैं ना, तो आने वाली जनरेशन भी फिर यही चीज सीखेगी। Okay. You want to pass on any message to the youth? मैं तो यूथ को यही बोलूंगा कि गेमिंग तो ग्रो हो रही है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो। बस ऐसा है कि ये एक ट्रेन निकल चुकी है, अब जिस जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, बाकी जिस जिसको सिर्फ दूर से एंजॉय करना है वो एंजॉय कर सकता है। ओके। वन लास्ट मैसेज फॉर द यूथ की जिस तरह से कंटेंट क्रिएशन आज 2026 में हम लोग देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन की तो निकल पड़ी है। नाउ ऑफिशियल कंटेंट क्रिएशन इज एन इंडस्ट्री नाउ बिकॉज गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है। वेयर डू यू सी इज द कंटेंट क्रिएशन गोइंग इन नेक्स्ट 2-3 years? अगले 2 से 3 साल में वो किस तरफ जा रही फिलहाल मुझे लगता है कि यूट्यूब और शॉर्ट्स जो है, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स है, उन पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है आने वाले 2-3 साल में। फिर हो सकता है कि कोई नया ट्रेंड आए, क्योंकि हमने ये चीज बार बार देखी है कि एक नया ट्रेंड आता है और लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम देखते हैं तो 1-2 मिनट का कंटेंट बहुत ज्यादा बन रहा है, तो शायद और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बने। तो ये भी मुझे लगता है कि है? कोई ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आए कि जो 10 से 15 सेकंड के अंदर ही हमको रिस्ट्रिक्ट कर दे। ओके। ओके, सो यू वुड से इट्स गोइंग टू बी शॉर्टर फॉर्म, पॉसिबल है, क्योंकि अभी देखो माइक्रो शॉर्ट्स। रील्स ने तो हमको एक चीज अलाउ कर दी है। पहले हम लोग देखते तो पहले 30 सेकंड तक ही बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको ज्यादा मिनट दिए, मतलब 1 मिनट तक या 2 मिनट तक का उन्होंने हमको टाइम दिया हुआ है। लेकिन हो सकता है ये लोग इसको भी और शॉर्ट फॉर्म कर दे, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। अभी देखे ना तो लोग 10 सेकंड किसी रील पे टिकते हैं फिर सीधा स्क्रॉल कर देते हैं। ज्यादातर मैं अगर अपने रील्स के एनालिटिक्स देखता हूं ना, तो वो 10-15 सेकंड तक ही स्टार्टिंग के ज्यादातर लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पूरा पूरा रील देखते हैं, लेकिन वो देखने पूरा रील देखने वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा कम होती है। ओके, ग्रेट। ओवर एंड अबाउट दिस गेमिंग थिंग, आपके और क्या शौक है, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी गेमिंग के अलावा जिम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग, एक फिट बॉडी रखना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके अलावा मेरे को क्रिकेट खेलना वगैरह पसंद है। ओके। एज अ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, एज अ गेमर, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू अ समबडी हु इज अ 14-15 ईयर ओल्ड कि उन्हें ये गेम्स के अलावा और क्या करना चाहिए? अगर गेमिंग इंडस्ट्री में बात कर रहे हो या फिर ऐसे बाहर के? नहीं नहीं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बिकॉज सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू जिमिंग, यू आर इनटू क्रिकेट एंड यू आर ऑफ कोर्स अ प्रोफेशनल गेमर ऑनलाइन,
तो एक 15 साल का युवा है, उसको क्या करना चाहिए? उन्हें ज्यादा समय यहाँ पे बिताना चाहिए या वहां पे बिताना चाहिए? थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एक फिट बॉडी है तो वो जाके आगे जाके आपको ही एक एक बेनिफिट करने वाली है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप कुछ कहीं पे परफॉर्मेंस कर पाओगे। सपोज कि आज आप अच्छा गेमिंग कर रहे हो लेकिन आपकी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज गेमिंग पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका फोकस अच्छे से नहीं आएगा। आपका कहते हैं कि जो स्किल्स है वही भी वेस्ट हो जाएगी। तो आपका एक हेल्दी बॉडी भी अच्छा रहना चाहिए। आपका पढ़ाई पे भी फोकस करो, क्योंकि अगर आप 14-15 साल के हो दैट मीन्स कि आपका पढ़ाई अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पढ़ाई तो मेरे को लगता है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर होगा ये चीज बोलेगा कि हाँ आप एक पढ़ाई करो, क्योंकि एक शिक्षित जो इंसान होता है उसका एक नॉलेज अलग ही होता है। उसके अंदर कहते हैं ना कि एक अच्छा सा सिविक सेंस होता है। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पढ़ाई करो। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप योगा करो घर पे। अगर मौका मिलता है तो आप थोड़ा बहुत जिम वगैरह करो, अपने बॉडी को थोड़ा फिट रखो, अच्छा हेल्दी खाओ, बाहर का फास्ट फूड वगैरह सब खाना थोड़ा कम कर दो। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, और साथ में अगर आपको टाइम मिलता है आप माइंड रिफ्रेश करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गेम्स वगैरह भी खेलो। Fantastic. How do you take investing? Because you are a professional gamer and you make serious money online. How do you take investment? आप सेविंग्स किस तरह से प्लान करते हैं? मैं इन्वेस्टमेंट तो अभी सही बताऊं तो मेरा तो रियल एस्टेट में बहुत मानना है कि रियल एस्टेट ऐसी चीज है ओके। कि जो जो ग्रो कर रही वाली है, जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। क्योंकि मैंने तो अपने बचपन से लेकर आज तक जो चीज को सबसे ज्यादा ग्रो करते देखा है वो दो ही चीज है, एक रियल एस्टेट और फिर दूसरा गोल्ड है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा सेफ है। हाँ, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, मैंने उसमें भी किया हुआ है। बट शेयर मार्केट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। जो लोगों के कहते हैं ना कि जिनका दिल हार्ड हिटिंग नहीं है, मतलब जो ज्यादातर कहते हैं ना कि जो एक इम्पैक्ट को हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है। बाकी जो चीज है वो रियल एस्टेट और गोल्ड है। Okay, great. Just to sum it up, Jayesh, I think you have been fantastic. You have been very transparent. आपने बहुत ऑनेस्टली बात की है, आपने दिल खोल के बात की है, आपने सारे आयाम शेयर किए। बिकॉज आपने पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी हर्डल्स, आपकी जर्नी, आपके फ्लॉज, आपने सब कुछ बताया कि आपने कहाँ पे गलतियां की है। आज इस पड़ाव पे आपको लग रहा है कि अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करते? अगर मैं गेमिंग नहीं करता तो प्रोबेबली मैं या तो एज ए इंजीनियर कहीं जॉब कर रहा होता, ऑटोकैड पे वर्क कर रहा होता, सॉलिड वर्क्स पे ओके। वर्क कर रहा होता, यही चीज होती। या तो फिर अगर इन केस अगर कोई पॉसिबिलिटी होती तो मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेता। ओके, ग्रेट। आपके लिए आपके ये जो सपने हैं कितने मायने रखते हैं? मेरे ये सपने मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने लगते हैं, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से कहते हैं कि मैंने एक डायरी ली थी, उसके अंदर अपने ड्रीम्स लिखे थे कि मेरे को ये चीजें चाहिए गेमिंग में, गेमिंग के थ्रू मुझे ये चीज लेनी है। और उस टाइम पे सॉरी उस टाइम पे जितनी भी चीजें मैंने अपने डायरी में लिखी थी, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने 100% चीजें उस टाइम पे जो लिखा था वो सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में अचीव की है। और हाँ, अभी मैंने और भी चीजें लिखी हुई है। आने वाले टाइम पे मेरा फोकस वही रहेगा कि मैं उस चीज को भी अचीव करूँ। ओके, सिंस यू ओपनड अबाउट योर ड्रीम्स, मैं आपको एक और फॉलोअप सवाल पूछना चाहूंगा कि उन चीजों में से आप कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे युवाओं के लिए कि चाहे वो एक छोटा से छोटा गोल हो सकता है या बड़ा गोल हो सकता है, आई डोंट नो। आपका मटेरियल गोल है, आपका पर्सनल गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, फिजिकल गोल है, मुझे पता नहीं है। बट एक या दो गोल आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे जो आपने अचीव किया है? दो गोल ऐसे कि जो मैंने कहते हैं कि मैंने पर्टिकुलरली फोकस उतना नहीं किया था। जैसे कि हेल्थ का है तो वो मैंने डायरी में नहीं लिखा था, लेकिन हेल्थ का मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं एज अ गेमिंग कास्टर मैंने वर्क किया। क्योंकि जब मैं ओके। बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था, बहुत ज्यादा ऑडियंस मुझे देख रही थी, क्योंकि मैं गेमिंग की कमेंट्री भी कर रहा था। उस टाइम पे मैं हिंदी में कर रहा था। तो ओके। जब मैं एज ए हिंदी कमेंटेटर टूर्नामेंट्स में वर्क कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा पतला था। तो मुझे लगा कि ओके। मुझे अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि कैमरा के सामने जब मैं दिखूं तो एक परफेक्ट दिखूं। तो ये मेरे अंदर था कि मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है, ये मेरा एक फिजिकल गोल था। उसके बाद अगर मैं मटेरियलिस्टिक की बात करूं तो मैं बाकी सारी चीजों की तो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे गेमिंग की बात करूंगा। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो तब मेरा कंप्यूटर सिर्फ कहते हैं ना कि 40,000 रुपीज का मैंने एक छोटा सा गेमिंग पीसी भी नहीं बोलूंगा, पीसी था, लेकिन उसको गेमिंग मैं अपना नाम देता था, जैसे तैसे गेमिंग चला लेता था। तो वैसा पीसी मैंने बनवाया था। तब मेरे पास कहते हैं कि एक डेस्क भी नहीं था प्रॉपर। तब मेरे दो बक्से थे, उसके ऊपर मेरा पूरा कंप्यूटर का पूरा सेटअप था, वहां से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलरली गोल था कि मेरा एक रूम हो
मतलब पहले मैं अपने भैया के रूम में था उस, और अभी मैं इस रूम में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैंने ये रूम को पूरा मैंने कस्टमाइज किया है कि मेरा रूम हो जिसके अंदर मैं अपना एक अच्छा सा बेड बनाऊं, जिसके अंदर मस्त अच्छा सा एसी चल रहा हो, मेरा बढ़िया सा स्टूडियो वाला एकदम माइक हो, मेरे पास दो दो पीसी हो, सेटअप हो, हर एक चीज गेमिंग की पड़ी हो। तो ये मेरा एक गोल था जो मैंने पूरा अचीव किया, और मैं इस चीज से मतलब कहता है ना कि मेरे लाइफ टाइम तक हमेशा खुश रहूंगा इस चीज से। फैंटास्टिक। आई थिंक वो खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है। आई थिंक जयेश बिंग अ वेरी वेरी यंग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर गेमर, एक गुजराती होने के नाते, और आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है, हम सबके लिए बहुत स्पेशल दिन है, बिकॉज इट्स फर्स्ट मे, एंड यू हैव बीन अ फैंटास्टिक गेमर, बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली सेट अप द प्लेटफॉर्म फॉर यंग जनरेशन। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने सारी क्लैरिटी दी है युवाओं के लिए। सो और आज आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत खुश होने वाले, बिकॉज यू आर गिवन देम द क्लैरिटी कि ये अगर करना है तो किस तरह से करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। सो यू मेड दिस वेरी क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। वी आर सुपर फन। थैंक यू सर, थैंक यू। जयेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, या थैंक यू। थैंक यू सर।